अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अली एजाज। और आज की इस सीरीज़ के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग, जो कि जनरली ओ लेवल्स के लिए रहेगी, ग्रेजुएशन के लिए रहेगी। तमाम तर स्टेजेस जो बेसिक अकाउंटिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो इसको पढ़ के एक अच्छी अकाउंटिंग के ऊपर अपनी ग्रिप ले सकेंगे। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ बुक जो हमने एक चूज़ की है इसको पढ़ने के लिए। वो अकाउंटिंग की बेसिक बुक जो ओ लेवल्स के लिए पढ़ाई जाती है, वहाँ से आपके सामने ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी साथ ही। तो यहाँ से, ताकि ये एक अच्छी बुक है और पैटर्न के साथ हम चलते जाएंगे, और स्पेशली हम लोग कवर कर रहे होंगे ओ लेवल्स का सिलेबस भी इसमें, और टॉपिकल्स भी साथ, एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी, और बेहतरीन तरीके से हम अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a systematic process of recording. Okay, accounting is a systematic process of recording, summarizing, and analyzing the financial transactions. The main thing that we should consider about the accounting is the financial transaction. Here is the financial transaction. So this is the definition of bookkeeping, but we are talking about the accounting. So it's a systematic process of of uh, summarizing, analyzing. Just stay with me, you will understand all the things, and interpret, and after this classify also the financial transaction. What about these things? The financial transactions. So in the accounting, we just talking about the financial transactions, and when we are talking about the financial transaction, we have to analyze the business as well as the business activities related to the financial transactions, not to other. हमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स को देखना है जिनके अंदर पैसा हमारे पास इन्वॉल्व है। अगर हमारे पास किसी कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिनके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो वो हम बीइंग एन अकाउंटेंट उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Why we do accounting? We just help the owners, managers, investors, and regulators to understand the financial health of organizations. So from our screen that you can see there, here's a definition of Here's the definition of bookkeeping. What is bookkeeping? The first step of accounting. Bookkeeping is a process to detail recording of all the financial transactions of a business. To keep the record of all the financial transactions of a business, must have to record all the transactions that which are very small transactions or big transactions, which are the credit transactions or debit transactions that you will learn in our नेक्स्ट लेक्चर्स। तो इसको रिकॉर्ड करने की आपके पास डिफरेंट टाइप्स रहती हैं। सो सबसे पहले तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग के प्रोसेस है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर रह के आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। उस पूरे प्रोसेस का नाम है बुक कीपिंग। इसी तरह बुक कीपर्स की मार्केट के अंदर जॉब्स भी दिखती हैं आपको। सो बीइंग अ बुक कीपर यू मस्ट हैव टू एंटर द एंट्री बीइंग बिहेव्स और ऑपरेट्स लाइक अ डाटा ऑपरेटर। So that is not our concern here, but we have to learn what is bookkeeping, the detailed recording of all financial transactions. The main word is financial transactions. So if the records are not maintained, हम भूल जाएंगे आने वाले दिनों में अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास मिस हो रही होगी। सो वी हैव अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस which is the systems, which one is known as the double entry system and the single entry system. We have a types of accounts like number one, we have a T account. Let me clear the screen. Okay, here is a type of account, T account, or here is the double entry system अकाउंट्स। सो वी शुड स्टडी लेटर। यहाँ पे आ जाता है डेट, आपके पास आता है पर्टिकुलर, इधर आपके पास आ जाता है डेबिट आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्रेडिट आ जाता है। अच्छा, अभी आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, इसको हम आगे वाली सीरीज़ में इसको बहुत तफसील से देखेंगे। अच्छा, बुक कीपिंग की डेफिनेशन हमारे पास हो गई। आफ्टर दिस
अब हम देखते हैं कि दोबारा से आके हमारे पास अकाउंटिंग क्या है जी। बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करते हैं, इसके अंदर हम अपने एसेट्स को, अपने लायबिलिटीज़ को, अपने कैपिटल्स को, इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करेंगे। बेसिकली वी हैव टू रिकॉर्ड and summarize and classify and interpret from the data of our financial transactions. Here the types of users of accounting also, the internal users and the external users. Later we should talk about this, but mark my words, here the assets, the liabilities, बहुत कीमती वर्ड्स हैं, इनके साथ ही हम चलते रहेंगे। क्या रहता है, हमारे पास एसेट्स होते हैं, हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं। अभी हम इनकी तरह तफसील में बात करेंगे। हमारे पास एसेट्स हैं और हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं। अच्छा, we have a type of assets here. The type of assets we have a two types of assets. Number one, हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा करंट एसेट, और इसी तरह हमारे पास दूसरा टाइप एसेट क्या होता है, हमारे पास होता है नॉन करंट एसेट। Okay, non-current asset. When we are talking about the two types of asset as well as we have a two types of liabilities, we should talk about it later. तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, अगर आप कोई भी एसेट 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लो, इन अ 1 ईयर आप इस एसेट को यूटिलाइज कर दो, इसका प्रॉफिट बना लो, तो हम देखेंगे हमारा जो एसेट है वो करंट एसेट हो जाएगा। अगर कोई एसेट हमारा आफ्टर 1 ईयर तक हमारे पास स्टे करता है, आफ्टर 1 ईयर हमारे पास स्टे करता है, तो हमारे पास होगा नॉन करंट एसेट। हाँ, हो सकता है अभी आपका यहाँ पे ये सवाल हो कि मैंने एसेट को तो डिफाइन ही नहीं किया। हाँ, मैं बताता हूँ, एसेट ऐसी चीज़ होती है, ऐसा हमारी चीज़ जिससे हम आने वाले वक्त में मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास जिससे हम आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर में गोल्ड सेव किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए मिसाल के तौर पे, आपके पास लैंड है, लैंड इज़ योर एसेट। आपके पास लैंड है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास कार है, जो सी चीज़ जिससे आप आने वाले वक्त में फ़ायदा उठा सकते हैं, पैसे जो है वो कमा सकते हैं, वो आपका एसेट है। एसेट को मैं जितना भी आपके सामने भी डिफाइन करूं, आपके पास वो तमाम चीज़ें जिनसे आप आने वाले वक्त में पैसा कमाएंगे, वो सारी हैं एसेट्स। क्लियर है? अच्छा, फिर मैं दोबारा बताता हूँ, वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ एसेट, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो हैं जो 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाएंगे, वो हमारे पास होंगे करंट एसेट्स, और जो 1 साल से आगे चले जाएंगे, 1 साल के बाद इस्तेमाल होंगे, वो हमारे पास होंगे नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है इतनी बात? यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे चलो, आगे देखो कि हमारे पास लायबिलिटी का वर्ड लिखा हुआ है। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज को। अब अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी भी मेरे पास 2 तरह की होती है। पहली तरह की लायबिलिटी मेरे पास होती है करंट, सी फॉर करंट लायबिलिटी, ओके, करंट लायबिलिटी, and second one is non-current liability, non-current liability. अच्छा, what is liability? Let me explain first. What is liability? Liability ऐसी चीज़ है जो अमाउंट पेएबल है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कोई आज एक चीज़ ख़रीदता हूँ और उधार पे ख़रीद लेता हूँ। अगर मैं वो चीज़ उधार पे ख़रीद रहा हूँ तो आने वाले वक्त में मुझे वो पे करनी है। अगर कोई चीज़ है, मतलब कोई अमाउंट है मेरे पे वाजिबुल अदा है, मैंने आने वाले वक्त में पे करनी है, तो उसे मैं कहूँगा वो मेरी लायबिलिटी है। एंड वी हैव अ टू टाइप ऑफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे कर देनी है, इट इज़ विद इन 1 ईयर हो गया ना, तो डैट इज़ करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी है, डैट इज़ नॉन करंट लायबिलिटी। जस्ट लाइक कि मैं कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लेता हूँ, तो शॉर्ट टर्म लोन अगर मैं लेता हूँ तो वो मेरे पास आएगा मेरी करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लोन अगर मैंने 2 साल 4 साल के बाद देना है तो वो मेरे पास आएगा नॉन करंट लायबिलिटी।
ओके, रिकॉल करते हैं, वी हैव एसेट, ऐसी चीज़ जो कि मुझे आने वाले वक्त में फाइनेंशियली बेनिफिट देगी और पॉजिटिव बेनिफिट देगी, तो मेरे पास आएगा एसेट। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट कौन से होते हैं? जो एक साल से कम अरसे के अंदर, यानी एक साल के अंदर अंदर 12 महीनों के अंदर अंदर आपको फायदा देंगे, वो आपके पास है करंट एसेट्स। जो एक साल से आगे चले जाएंगे वो आपके बन जाएंगे नॉन करंट एसेट्स। आफ्टर दिस देयर इज अ लायबिलिटी, व्हाट इज द अमाउंट पेएबल, जो मेरी तरफ से अमाउंट पेएबल है, जो मैंने आने वाले वक्त में अमाउंट देनी है, वो मेरी होगी लायबिलिटी। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी है वो है मेरे पास करंट लायबिलिटी, और जो एक साल के बाद मुझे पे करनी है वो है मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलो इससे आगे चलते हैं। व्हाट इज कैपिटल? ये जो एसेट है, जो लायबिलिटी है, जो कैपिटल है, इनके साथ हमारा बहुत दूर दूर तक वास्ता पड़ा रहेगा और इसी के साथ ही वास्ता रहेगा। सारी अकाउंटिंग इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल? जो अमाउंट एक ऑनर, बिजनेस ऑनर अपने पास इन्वेस्ट कर रहा है, जो अपने बिजनेस के अंदर ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमारे पास होगा कैपिटल। कैपिटल कौन सी मनी है? वो मनी जो मैं बीइंग अ बिजनेस ऑनर अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो है मेरा कैपिटल। मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस हम शुरू करते हैं और उसमें से मैं अपने अकाउंट में से, अपनी ज़ाती अकाउंट में से 1,00,000 रुपया बिज़नेस को दे देता हूँ। तो वो जो मैंने 1,00,000 रुपया बिज़नेस को दिया है, ये मेरा है कैपिटल, नॉट प्रॉफिट, नॉट एनीथिंग। ये मेरा क्या है? कैपिटल। ऐसी अमाउंट जो मैं खुद बिज़नेस को दे रहा हूँ बिज़नेस को चलने के लिए, वो मेरा क्या है? कैपिटल। ओके, नाउ एक चीज़ बहुत गौर से याद रखिएगा अपनी, हमारे पास जो दो अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी, ऑनर इज़ अ सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो इनके अकाउंट्स भी अलग अलग होंगे। अब ये कैपिटल है, तो कैपिटल एक साइड पे बिजनेस का अकाउंट है और दूसरी साइड पे ये ऑनर का अकाउंट है। बट अब हम इसको काउंट करेंगे, ऑनर्स इक्विटी भी समझेंगे। यहाँ देखें इसको, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी भी समझेंगे, यानी ऑनर की मलकियत भी है या ये बिजनेस का कैपिटल भी है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलें इससे आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को एंड कैपिटल्स को। टिल वी हैव लर्न द थिंग, the topics assets, recall करें फौरन से। assets are the things which provides the financial benefits in the future, and liabilities the amounts payable in a certain time period is known as liabilities. In the capital the amount invested by owner to run the business is known as capital. Okay, moving forward, the accounting equation. What is the accounting equation? The most important thing that we have is accounting equation. Okay, what is accounting equation? Assets is equal to capital plus liability. इसको थोड़ा थोड़ा चेंज भी करते रहेंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कैपिटल फाइंड करना हो, तो मैं कहूँगा कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा मेरा कैपिटल। और अगर मुझे कभी लायबिलिटी फाइंड करनी हो, एल स्टैंड फॉर लायबिलिटी, सो फिर मैं कह दूंगा कि मेरा एसेट्स माइनस हो जाएगा कैपिटल से। तो ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो चेंज भी होती रहेगी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन मुझे क्या अकाउंटिंग इक्वेशन लगानी है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब भी मैं बात करूंगा आपसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, तो आप सबसे पहले फ़ौरन से याद करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ओके, कैपिटल की बात तो हम लोग कर चुके हैं कि कैपिटल क्या होता है, ऑनर इक्विटी क्या होती है। ऑनर इक्विटी को ही हम कैपिटल कह सकते हैं और कैपिटल को ही हम ऑनर इक्विटी कह सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम इनके नाम इधर उधर कर सकते हैं।
सो कैपिटल को देखो यहाँ पर रिप्लेस भी करके दिखा दिया कि कैपिटल को उसने दिखा दिया ऑनर की इक्विटी। बाकी मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह हम इसको भी चेंज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने तक। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ इतना समझते जाएं। जब हम इसके क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन सॉल्व करने लगेंगे ना, सो हमें बहुत सी चीज़ें आसानी से समझ आती रहेंगी। तो जब हम चलेंगे सॉल्यूशंस पे, प्रैक्टिस पे ऊपर, तो फिर हमें चीज़ें आसानी समझ आती जाएंगी और चैप्टर वाइज प्रैक्टिसेस भी साथ साथ ही मैं अपलोड करता रहूँगा। चलो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स देखते हैं। देखो वो एक आपके पास ट्रांजैक्शन आई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में और विदाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क होता है। सो देखो, अगर लीना सेटअप अ बिजनेस टू ट्रेड अंडर द नेम ऑफ ड्रेस शॉप, ये कुछ काम तो हुआ है लेकिन ये अकाउंटेंट के मतलब का काम नहीं है। क्यों अकाउंटेंट के मतलब का काम इसलिए नहीं है बिकॉज अभी तक मुझे नहीं पता चला इसमें पैसे लगे हैं या नहीं लगे। बट जैसी बात होगी, शी ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड पेड 20,000 एज ए कैपिटल। ओके, लर्न दिस ट्रांजेक्शन फर्स्ट। मैं उर्दू में अपनी बाय लैंग्वेज में इसीलिए आ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हमारा जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जो हम बात करना चाह रहे हैं वो क्या है। देन वी शुड सॉल्व ऑल द ट्रांजेक्शंस और इलस्ट्रेशंस इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज टू प्रिपेयर आवर exam first, but at the time of understanding that we must have to learn in our basic language ताकि हम concepts को grip कर सकें। Okay, here is a date 1st January. Lena set up a business. Okay, we don't concern with this. We must concern with this one. Okay, bank account, she opened a business bank account and paid 20,000 as a capital. Okay, we have a capital here 20,000. Okay, first time business purchases the premises of rupees 15,000. We have a two financial transactions. The third financial transaction is the business purchased goods for 3,000 ऑन क्रेडिट खरीदा, कैश अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ। द बिजनेस सोल्ड गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस ₹1,000 ऑन क्रेडिट। ओके, ये था हमारे पास प्राइमरी एंट्री। इसको यहीं पे साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो साथ साथ ही मैं कवर करता जाऊंगा। इसको मैं कहूँगा ये मेरे पास ट्रांजेक्शन है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री की, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ये मेरे पास एक बेसिक ट्रांजैक्शंस आ गई, ठीक है, जो कि नोट होती हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री के अंदर। ठीक है, कि ये एक नॉन अकाउंटेंट पर्सन है, वो मुझे ये ट्रांजैक्शंस को लिख के देगा, रिकॉर्ड कर देगा कि ये मेरी ट्रांजैक्शन हुई है एस्टेट को। तब बीइंग एन अकाउंटेंट मैं इसको कैसे डील करूँगा वो अब हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा देखें ज़रा, बीइंग एन अकाउंटेंट हम इसको डील करेंगे तो हम कहेंगे कि 1 जनवरी को, ये अभी तो यहाँ आपके सामने चीज़ें बनी हुई आपको सैंपल्स नज़र आ रहे हैं ना, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब हम इनको नहीं देख रहे होंगे, तब हम खुद से कर रहे होंगे। तो देखो 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी को बैंक के अंदर पैसे गए कितने, 20,000 रुपया। ठीक है, $20,000 गया। देखो सबसे पहले हमें लिखना है एसेट्स, ताकि जितने भी एसेट्स हैं हम एसेट्स के नीचे जाते जाएंगे, ये देखो, और उसके बाद हम लिख देंगे कैपिटल और लायबिलिटी। इसी तरह ही लिखेंगे कि हम डेट, जब हम डबल एंट्री में चले जाएंगे तो उसका सिस्टम कुछ अलग हो जाएगा। तो अभी हम कहेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के हमारा क्या इफेक्ट आता है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 जनवरी को मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए हैं $20,000, जो कि मेरे बने कैपिटल। जब मेरा एसेट था वो मैंने बिजनेस को दे दिया, तो वो मेरा क्या बन गया, कैपिटल बन गया। ठीक है, दोबारा बोलो, जो मेरा पैसा था, जो मैंने अपने पैसे बैंक को दिए या बिजनेस को दिए, वो मेरा बिजनेस के पास जाके बन गया कैपिटल। ठीक है, और अगर वो मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो मेरे लिए होगी ऑनर्स इक्विटी, और अगर मैं बैंक की तरफ से देखूंगा तो वो होगा, बिजनेस की तरफ से देखूंगा तो वो मेरे पास होगा कैपिटल। ओके, 2 जनवरी को यहाँ ट्रांजेक्शन के अंदर देखो, 2 जनवरी को उन्होंने कुछ बिजनेस की कुछ चीज़ें खरीदी, फर्नीचर खरीदा या कुछ भी चीज़ें खरीदी, तो उसने कुछ प्रेमिसेस खरीद लिए $15,000 के। ओके, यहाँ बात समझो,
आपके पास था $20,000, उस $20,000 में आप गए और आपने जाके $15,000 की शॉपिंग कर ली। आपके पास बाकी कितने पैसे बच गए? $5,000। ओके, $5,000 ही आपके बैंक में पड़े हुए हैं बाकी। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे कि एसेट वाली जगह पे $20,000 आ गया, कैपिटल वाली जगह पे $20,000 आ गया, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने किसी के पैसे देने नहीं है। अब आप कहोगे सर 15,000 की शॉपिंग कर ली फिर भी $20,000 कैसे आ गया? मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैंने, यहाँ मैं साथ साथ एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर मैंने $15,000 की शॉपिंग की है, ठीक है, तो मैंने कुछ बाय भी किया होगा। मान लो इसके अंदर से मेरे पास गया, ये मेरे पास कैश में था और यहाँ मैंने फर्नीचर बाय कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ फर्नीचर बाय कर लेता हूँ तो फर्नीचर मेरे पास आया है, ठीक है, मेरे ऑफिस के अंदर फर्नीचर आ गया और कैश मेरे पास से चला गया। तो जितने का कैश मेरे पास से गया उतने का एसेट मेरे पास आ गया। डैट मीन्स कि मेरे पास बैलेंस पूरा है। सिर्फ मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो कैश था उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया और उस एसेट को अपने पास किसी और शक्ल में रख लिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अच्छा, आगे इसी तरह की चीज़ें आती जाएंगी तो इंशाल्लाह और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो मेरे पास बाकी बैंक के अंदर कितने पैसे बच गए? बैंक के अंदर मेरे पास बच गए $5,000। तो देखो 15,000 की तो मैंने शॉपिंग कर ली और 5,000 मेरे पास बाकी बच गए, तो कितने बन गए ये टोटल? $20,000। ठीक है, और ये जो मेरे पास कैपिटल था, कैपिटल जो मैंने बिजनेस को दिया था, तो ये टोटल एसेट अभी भी मेरे पास है $20,000। अच्छा, 3rd ऑफ जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन होती है? 3rd ऑफ जनवरी को ट्रांजेक्शन होती है $3,000 की गुड्स परचेज कर ली जाते हैं क्रेडिट पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो, प्रेमिसेस तो थे मेरे पास कितने के? 15,000 के। इन्वेंट्री में ले लेता हूँ 3,000 की और बैंक में मेरे पास जो पैसे बच गए वो बच गए $5,000। फिर आपका सवाल होगा सर ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें? मतलब सिंपल सी बात है, 15,000 की शॉपिंग पहले कर ली थी, $3,000 की शॉपिंग फिर कर ली, तो ये तो बन गए ना $18,000। और अब हो जाना चाहिए था बैंक के अंदर मेरा $2,000। बट सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप कैसे? देखो, ट्रांजेक्शन में देखो वो कह रहा है कि परचेज ऑन क्रेडिट, उसने उधार पे खरीदा है। उसने जो भी इन्वेंट्री खरीदी है उसने उधार पे खरीदी है, उसको पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब कि एसेट जो है, एसेट 3,000 का मेरे पास ऑफिस में आ गया, बट ये पैसे अभी तक गए नहीं, ये पैसे अभी तक गए नहीं है। सो अगर ये पैसे अभी तक गए नहीं है तो इसका मतलब मेरे बैंक में ये पैसे पड़े हुए हैं। ओके, अगर ये पैसे मेरे पास बैंक के अंदर, इन्वेंट्री जो 3,000 की मेरे पास आ गई और बैंक में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, तो टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 15। और जब मेरे पास एसेट है, अगर मैं एसेट का टोटल कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास गए नहीं है ना, इन्वेंट्री मेरा एसेट होता है। चलो ये भी समझते जाओ साथ साथ ही, इन्वेंट्री जो होता है वो आपका क्या होता है? एसेट होता है। अगर आप बात करें 15,000 प्लस आप इसको कर दो 3,000 तो कितना हो गया? 18,000। 18,000 में आप प्लस कर दो 5,000 तो आपके पास बन गया 23,000। अच्छा, अब आप सोचोगे, पूछोगे सर प्लस क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। टोटल एसेट्स है ना, जो भी एसेट्स आपके पास अनलिस्ट होते जा रहे हैं उन टोटल एसेट्स को आप लोगों ने सम करना है। सम करेंगे तो टोटल एसेट्स निकल आएंगे। ठीक है, सो अभी हम एसेट्स को हमने कर दिया सम। अभी कैपिटल मेरे पास कितना था? कैपिटल था मेरे पास 20,000 जो कि मैंने लगाया था, बट एसेट मेरे पास बन गया क्या? एसेट मेरे पास बन गया 23,000। सो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ एसेट्स माइनस, सॉरी, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी कर देते हैं। ठीक है, एसेट में से कैपिटल को क्या करते हैं? माइनस। तो मेरे पास एसेट हो गया 23,000 का, माइनस कर दें 20,000 को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? लायबिलिटी के इक्वल होगा। तो 23,000 में से 20,000 को मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 3,000। तो 3,000 मेरी क्या होगी? लायबिलिटी। ये लो, ये लिखी हुई लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी के नीचे क्या लिखी हुई है? लायबिलिटी लिखी हुई है। चलो थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं इसको। अच्छा, ये देखो,
ये देखो ये कॉलम्स बने हुए ना, कैपिटल के नीचे हम कैपिटल लिखते हैं और एसेट्स के नीचे हम एसेट्स लिख रहे होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, आप देखो मेरे पास जो एसेट बन गया टोटल वो बन गया 23,000, जबकि मैंने जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तो किए थे 20,000 के। तो एसेट में से मैं कैपिटल को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम इन इक्वेशंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। सो यूज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन कि ये देखो कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सो एसेट इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस कैपिटल इज इक्वल टू, इस तरफ क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगी। और इसी तरह अगर मुझे कैपिटल फाइंड करना होता तो मैं करता एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर है? ओके चलो अब दोबारा देखो इसको, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी यहाँ तक हमें समझ आ गया कि हमारे पास जो लायबिलिटी है वो 3000 कैसे आई है और अकाउंटिंग इक्वेशन का भी इस्तेमाल कैसे करना है। चलो 4th ऑफ जनवरी को क्या होता है, सोल्ड गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹1000 ऑन क्रेडिट। ले अब हम बेच भी किस पे रहे हैं, क्रेडिट पे रहे हैं। प्रेमिसेस हमारे पास कितने के थे, 15,000 के। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी हो गई, अगर मेरे पास पहले इन्वेंट्री थी, ये देखो यहाँ समझो, पहले मेरे पास इन्वेंट्री थी 3,000 रुपये की, अब मैंने 1,000 की इन्वेंट्री उसमें से बेच दी तो इन्वेंट्री कितने की रह गई, 2,000 की। ओके अब मैंने क्रेडिट पे बेची है, किस पे बेची है, क्रेडिट पे बेची है। अगर मैं क्रेडिट पे बेचूंगा तो इसका मतलब कि मैंने ट्रेड रिसीवेबल है, किसी से पैसे लेने हैं। अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल है तो मेरा एसेट है, मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो मेरा एसेट है। अगर आपको कोई मसला हो यहाँ पे तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे एक लिस्ट बना के मुझे कमेंट में दें, मैं आपके सारे आंसर्स करूँगा। ओके तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारा कितना होगा, 1000 रुपीज़, और बैंक में हमारे पास 5000 पड़े हैं जो कि हमें यहाँ भी नज़र आ रहे थे और यहाँ भी नज़र आ रहे थे। तो टोटल पैसे कितने हो गए, 15,000 और 2000 कितने हो गए, 17 प्लस 18,000, 18 में 5 प्लस कर दो तो कितना हो गया, 23,000। ओके कैपिटल अभी भी कितना है, 20,000, और दोनों को माइनस करें तो लायबिलिटी निकलेगी 3000। अभी तक हमने लायबिलिटी पे नहीं की। चलो फर्ज कर लो एक ट्रांजैक्शन आती है जिसमें वो कहता है कि लायबिलिटी, वो ट्रांजैक्शन बन जाती है पे लायबिलिटी 3000। तो अगर वो लायबिलिटी 3000 पे कर देगा तो ये वाला जो होगा ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो हमारा एसेट है वो 23,000 का रह जाएगा, और अगर 23,000 का है और उसमें से लायबिलिटी भी पे करते तो एसेट वापस आ जाएगा कितने का, 20,000 का, क्योंकि अंदर से लायबिलिटी हो जाएगी माइनस। क्लियर हुआ, इतना समझ आया तसल्ली से? अगर नहीं समझ आया तो इसे दोबारा देखो और इसको 3 चीज़ें तो याद रखो, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल्स, और उनका डिस्पोजल किस तरह से करना है ये भी आसानी से समझ आता जाएगा। बस आपने हौसला रखना है और आगे चलते रहना है बस। So after this we solve the exercise or test yourself for sake of practice, कि हम अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके प्रैक्टिस कर सकें। सो उसके लिए क्या आएगा, देखो वो कहता है एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, एक इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है इसको सॉल्व करके दो। सो देखो यहाँ कैपिटल मिसिंग है, सो हम कैपिटल को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वट एवर यू कैन से। सो वी आर हैव टू फाइंड द कैपिटल फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो एसेट कितना है आपका, 35,000 में से 12,500 आप माइनस कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 35,000 माइनस 12,500 रुपी। अब माइनस कर दो तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो चेक करो क्या आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी इधर कैपिटल होगा आपका। अब वो कहता है कि मुझे एसेट बताओ, एसेट क्या होता है, एसेट कैसे बताएंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इन दोनों को क्या कर देंगे, इसको सम कर देंगे, इसको सम करने से जो अमाउंट आएगी वो आपका एसेट हो जाएगा। अब कहते हैं लायबिलिटी बताओ, लायबिलिटी कैसे बताएंगे,
एसेट में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगा। क्योंकि ये देखो ना, यहाँ प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल बच जाएगा। क्लियर है जी? ओके, ये भी देख लो, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास शो होता है, हमारे पास पूरा एक ना पार्ट होता है, उसमें हम पहले अपने एसेट्स लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे सारे अपने एसेट्स को डिक्लेयर करवाते हैं, फिर हम अपनी लायबिलिटी को डिक्लेयर करवाते हैं कि हमारी लायबिलिटी कितनी है, फिर हम एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके अपना कैपिटल डिक्लेयर करवाते हैं, और कैपिटल में से फिर हम EBIT, यानी कैपिटल जो है हमारा वो EBIT होता है, और इसमें से हम सारे टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद हम अपना नेट प्रॉफिट शो करवाते हैं। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से पता चलती है, तो इसको भी हम आगे बहुत तफसील में देखेंगे इंशाल्लाह। तो तकरीबन हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है, वॉक ओवर का ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए जाते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, विच टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द बुक कीपर। बुक कीपर कौन सा टास्क है जो परफॉर्म करता है जी? एनालाइज बुक कीपर नहीं करता। एंट्रिंग ट्रांजेक्शंस इन लेजर, प्रिपेयरिंग ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक कीपर नहीं बनाता, अकाउंटेंट बनाता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग नहीं, बुक कीपर का काम ये होता है, ये काम है बुक कीपर का, ठीक है। एंटर करना, उसने ट्रांजेक्शन्स को लेजर में एंटर करके देना है आपको, ओके। आफ्टर दिस अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि मुझे क्या बताओ, वो कहते हैं मुझे वैल्यू ऑफ एसेट्स बताओ, मुझे बताओ मेरा एसेट कितने का है। अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ से फिगर आउट करेंगे कि हमारे पास एसेट्स कौन कौन से हैं। देखो, प्रेमिसेस, अगर मेरी कोई मलकियत में चीज़ है तो वो मेरा क्या है, एसेट है। मैंने बताया था इन्वेंट्री मेरा क्या है, एसेट है। ट्रेड्स पेएबल मेरा एसेट नहीं है क्योंकि पैसे मैंने देने हैं। अगर मैंने पैसे लेने हैं किसी से, ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट है, ओके। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अपने जो मेरा बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो मेरा क्या है, वो मेरा एसेट है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोटर व्हीकल, जो है गाड़ियां हैं मेरे पास, वो भी मेरा क्या है, वो भी मेरा एसेट है, ठीक है। सो अभी ये जो चीज़ें हैं ये मेरा क्या है, एसेट हैं। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि ऑफिस के जो चीज़ें पड़ी हैं, ऑफिस का जो फिक्सचर है या फिटिंग्स हैं, क्या वो मेरा एसेट है या नहीं है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा ना। सो अब जल्दी से तो बताओ मुझे, क्या वो मेरा एसेट है या नहीं है। उतनी देर मैं इनको सम कर लेता हूँ। 1,80,000, 23,400 और ये सब चीज़ें मुझे मैं सम करता हूँ उतनी देर, तो आप मुझे देख के बताओ कि क्या मेरा एसेट है या नहीं है। अच्छा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, आपको समझ आ गई होगी। ये भी मेरा क्या हो गए, एसेट्स हो गए। एक सेकेंड बस, इससे पहले कि यहाँ हमारा एसेट बंद हो जाए, ये ओके, वी हैव सिक्योर्ड आवर एसेट येट। सो हाँ, यहाँ पे जो मेरा ऑफिस का फिक्सचर है, वो भी जो ऑफिस का मेरा सामान पड़ा वो भी सारा मेरा क्या है, वो भी मेरा एसेट है। सो अगर मैं ये वाला इसको ये जिनको मैंने टिक किया हुआ है, इनको अगर मैं सम करता हूँ तो आप भी अपनी कैलकुलेटर पर सम करके देख लो, तो ये तकरीबन अमाउंट बनती है 27,6,1,8,0, ये अमाउंट बन गई, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा हो गया एसेट्स। आगे पूछता है कि मुझे वैल्यूज़ बताओ कि मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटीज़, तो अमाउंट पेएबल होगी। जैसे अगर मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ, हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं, हाँ ठीक है। अगर मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ तो वो मेरी लायबिलिटी है क्योंकि मुझे आने वाले वक्त में पे करनी है। ट्रेड पेएबल का मतलब है कि मैंने किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो भी मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब इन दोनों का मैं सम करूँगा तो मेरी लायबिलिटी आ जाएगी, और वो तकरीबन कितनी लायबिलिटी आएगी मेरी, अगर मैं 26,180 को प्लस कर दूँ, लोन मैंने कितने का लिया है, 80,000 का, तो ये तकरीबन मेरी जो अमाउंट बन जाती है 10,6,1,8,0,
ओके अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ मेरा कैपिटल कितना है। सो अभी कैपिटल के लिए आपको इक्वेशन याद है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे। सो एसेट में से लायबिलिटी को अगर मैं माइनस कर दूं, यानी टोटल एसेट्स में से मैं टोटल लायबिलिटी को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास एक अमाउंट बनती है। आप कैलकुलेटर पे खुद करके देखिएगा, तकरीबन ये मेरे पास बन रही है, ठीक है, 1,70,000 कुछ अमाउंट है जो मेरे पास वापस बच जाएगी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है? अच्छा जी, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, आपको फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बताती है कि आप क्या ऑन करते हो, क्या ऑफ करते हो, कितने आपके पास है, कितना आपके पास से चला गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ, वो कहता है कि बिजनेस हैज़ $9,420 इन बैंक अकाउंट। तो बताओ कि अगर अगर वो बहुत गुड्स ऑन क्रेडिट पे 250 की ख़रीदता है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 1100 क्रेडिट पे बेच देता है, और उसके बाद वो फर्दर लोन रीपे कर देता है चेक के ज़रिए, तो बताओ उसके पास बैंक में कितने पैसे बचे। देखो यहाँ पे तो 250 रुपये है, क्रेडिट पे ख़रीदा है, क्रेडिट पे आया मतलब पैसे लगे ही नहीं है, ना गए ना आए हैं, बिका भी क्रेडिट पे, मतलब पैसों का कोई आना जाना नहीं हुआ। अच्छा ये 5,000 रुपये बैंक वाले को वापस कर दिया है, तो जो मेरे पास टोटल अमाउंट थी वो 9,420 रुपये थी, इसमें से माइनस कर दो आप 5,000, तो आपके पास बच के 4,420 रुपीज़। ओके जी, क्लियर है। सो नाउ our चैप्टर इज गोना कंप्लीट। ये बाकी आप खुद करके देखो, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं दोबारा इसे आपको करवा दूंगा, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी वो एसेट्स को देखा, लायबिलिटीज़ को देखा, कैपिटल को देखा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी और बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा, उसका इस्तेमाल देखा। आने वाले दिनों में अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिसेस भी करेंगे और इनके जो टॉपिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।